Yes, dear students, so we'll move some basic question we will do. Look at this. Suppose you have to integrate 3x squared minus, let's say 3x minus 5, 3 by 2 dx, correct? This is I. This is integral side, fine? So this is again ax plus b form, ax plus b whole n, that we know ax plus b whole n dx is what? The integration of ax plus b n plus 1 upon n plus 1 into a, right? So here what will be the integration? 3x minus 5, 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 n plus 1, and the coefficient of x is 3, multiply with 3. So what left? 3x minus 5, this is 5 by 2, and here it is 15 by 2. 15 by 2, and it will flip, so it becomes 2 by 50, correct? And plus c, this is the answer, right? So ax plus b whole n, ax plus b whole n dx, that formula that you have to remember, correct? Now look at this sum of the situation. Suppose I equals to dx upon 6x minus 3 to the power 8, and let's say this is 1 upon minus 1 upon 3x plus 4 whole to the power 5 and dx, correct? This we have to integrate. So again what we'll do, we'll make it into ax plus b form. So we'll take here x minus 3 minus 8 dx. We'll separate integration fx minus gx. So integration here, and this we will drag it into minus 5 power into dx, fx minus gx. Now we'll integrate with the help of again ax plus b whole n. So that is 6x minus 3 minus 8 plus 1 and minus 8 plus 1, and the coefficient of x is 6. Multiply. Same way here, 3x plus 4 minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1, and the coefficient of x is 3. Multiply with 3. और इसका c और इसका c, दोनों c मिलके 1 प्लस c हो जाएगा, ठीक है? दो इंटीग्रेशन है ना, तो दोनों को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी, तो दोनों के c मिलके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बन जाएगी, ठीक है? तो आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर, तो ये आएगा 6x माइनस 3 टू द पावर माइनस 7, and here it is minus 42 minus 3x plus 4 to the power minus 4, और ये minus 4 3 plus 12 and plus c. So this way we can get the integration of this type of a function, correct? Now we'll move to some, these are very basic integration here. Why I am doing, क्योंकि ये भी एक इंटीग्रेशन है जो आपको आनी चाहिए, एंड ये एक सिंपल इंटीग्रेशन इस तरह का भी देते हैं, बहुत बेसिक. ठीक है, ये अलजेब्रिक वाले में कुछ आपने देखा. लेट्स से अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 7x minus 2 and minus रूट 7x minus 5 है, ठीक है? पूरे डिनोमिनेटर के अंदर है. सो व्हाट विल डू, वी कैन नॉट टेक ऊपर, तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं. तो इसको आप रूट 7x minus 2 प्लस रूट 7x minus 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो नीचे क्या होगा, a स्क्वायर रूट गेट कैंसिल minus b square again root get cancel, and this become plus 5 minus sign plus 5 into dx, ठीक है? So now look at this, what will happen after this. So we will left with 7x get cancel, 5 2 3, तो 1 by 3 constant आप बाहर ले लेंगे आप, और ये 7x minus 1 by 2 dx, और प्लस ये इस पूरे को बाहर कर दीजिए, 1 by 3 बॉक्स डाल दीजिए, और इसको भी सेपरेट कर लीजिए, 7x minus 5 1 by 2 dx. Now we have to integrate with the formula which is ax plus b whole to the power n. So this came 1 by 3, 7x minus 2 1 by 2 plus 1,
This is 1 by 2 plus 1 into coefficient of x 7 plus this is 7x minus 5, 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 into 7 and plus c. At the end you simplify, ये पावर से सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट द आंसर. ठीक है, तो रेशनलाइज करके भी इस तरह के इंटीग्रेशन को यू कैन इंटीग्रेट. ठीक है, सो अगेन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व दैट ए एक्स प्लस बी होल एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ठीक है, आइए कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का देखते हैं. अभी मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं स्टार्ट किया हूँ, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला का चल रहा है कि रेशनलाइज कर दिया. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी बहुत बेसिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन. तो ये कुछ अलजेब्रिक देखा आपने, ए एक्स प्लस बी होल एन पे रेशनलाइज करके आपने ए एक्स प्लस बी होल एन तैयार कर लिया. नाउ सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट, ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वी नो इन टेबल वी हैव रिटन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विच इज माइनस कॉस एक्स, बट ये स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन में डियर स्क्वायर क्यूब वालों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है. ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है. इसको मुझे मल्टीपल एंगल तैयार करना पड़ेगा. मल्टीपल एंगल मतलब जैसे cos 2x प्लस 3, cos 2x में, cos 3x में, sin 3x में जो मल्टीपल एंगल होती है, सो दैट हम sin ax प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या cos ax प्लस बी का. ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप मल्टीपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऑक्सीजन है हमारे पास, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. करेक्ट, कैन बी राइट इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. होता है ना फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, 2 को आपने इधर ले आया. तो देखो ये स्क्वायर जो है ये मल्टीपल एंगल में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया. और cos ax प्लस बी का फॉर्मूला पता है अपने को, cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन पता है अपने को, क्या होती है वो, sin ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी. करेक्ट, सो स्क्वायर या क्यूब जब भी हो ट्रिग्नोमेट्री में तो आप उसको मल्टीपल एंगल में बनाएंगे. अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए कैसे, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट कंप्लीट पावर 1 इंटू डी एक्स. ठीक है, इसको बॉक्स कर लीजिए, फिर यहाँ भी सेपरेट कर लीजिए cos 2x dx. ठीक है, नाउ लुक एट दिस, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है डियर वो x होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं x टू द पावर 0 dx लिख सकता हूँ. x टू पावर 0 इज 1 और x टू द पावर 0 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी. तो ये क्या आएगा, x प्लस सी. So integration of dx is x plus c. Always remember integration of dx is x plus c. तो मैं एंड में देने वाला हूँ लास्ट में. ये cos 2x आ गया इसमें, sin 2x by 2. So sin 2x upon 2 plus c. So this is the integration of sin square x. Fine. So ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा केयरफुली करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो अच्छे से सीखना है. स्क्वायर हो, क्यूब हो, होल टू द पावर 4 हो, तो आपको मल्टीपल एंगल में लाना पड़ेगा. ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स. सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स लिख दिया इस प्रॉब्लम के साथ, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, वी नो 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आंसर वही आएगा. ठीक है, प्लस में आंसर आ जाएगा. cos स्क्वायर का क्या हो गया, 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस प्लस बीच में आ गई, प्लस है, सेम आंसर x, केवल साइन चेंज हो गया. ठीक है ना, तो cos स्क्वायर x था तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर x था तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 एंड देन सेम प्रोसेस. क्लियर है, साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट होगी, ये बहुत बेसिक है, अच्छे से समझिए. cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स. नाउ विल मूव टू tan स्क्वायर एक्स. क्योंकि देखो साइन, कॉस, tan, कॉट ये सब के इंटीग्रेशन तो आपको टेबल में दिए हुए हैं, वो तो आपको लर्न रखना ही है. बट जैसे ही कुछ ये ऐसे चेंज आएंगे, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, तो आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स से वी हैव सिचुएशन tan स्क्वायर एक्स
dx, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स तो टेबल में नहीं था, हमने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया विच इज tan x। हमें पता भी नहीं है tan स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, करेक्ट। तो मैं इस tan स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो लिख सकता हूँ, कैन वी राइट, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। तो tan स्क्वायर क्या होगा, 1 इस टाइप को आ जाएगी, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा लाने का पर्पस क्या हुआ, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है अपने को। सो नाउ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस fx माइनस dx इंटू dx, फाइन। सो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यू नो tan x प्लस c, ये c और उसका c दोनों ऐड होगा, लास्ट में एक c आई, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज दिस। सी यू कैन नॉट लर्न, आपको केवल वही फॉर्मूलाज लर्न करने हैं जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, उनके इंटीग्रेशन आपको लर्न करने हैं। आप इनके इंटीग्रेशन नहीं लर्न करेंगे, ये आपको फॉर्मूला से ब्रेक करके इंटीग्रेट करने आना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कॉट स्क्वायर एक्स की बात कर लें, कॉट स्क्वायर एक्स dx। सो कॉट स्क्वायर एक्स फिर से हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, we know that it is cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं इसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना, सेपरेट कर लीजिए, cosec स्क्वायर x dx माइनस डी एक्स, एंड यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x, सो दिस इज माइनस cot x, और dx का डेयर x होता है, ठीक है, तो प्लस c, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x। अच्छे से सभी बच्चे वीडियो देखिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत बेसिक है, टाइम लगाओ, 2 बार वीडियो देखो, कॉपी पेन के साथ बैठो, और जैसे ऐसे की जा रही है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जा रही है। कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉट स्क्वायर हमने टेबल में लिखा ही नहीं था, वी हैव रिटन कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, तो मैंने कॉट स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से कन्वर्ट किया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है विच इज माइनस कॉट एक्स, एंड डी एक्स का वी नो एक्स, ठीक है। तो सारे रिजल्ट को ध्यान में रख के करना है, कब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है, ये सब चीज सीखना है इसके अंदर, बिकॉज इंटीग्रेशन यू कैनॉट लर्न, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आप लर्न करें, बट इंटीग्रेशन को यू कैनॉट लर्न, ये एक स्किल है, स्किल को सीखना है, कैसे इंटीग्रेट करना, क्या करना चाहिए, कब सब्सटीट्यूट करना, कब फॉर्मूला डालना है, ठीक है, कि मुझे अपना जो टेबल बनाया उस फॉर्मूला में मिल जाए, वही काम करना है। कॉट स्क्वायर वहाँ टेबल में नहीं था, टेबल में वहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का बना हुआ था विच इज माइनस कॉट एक्स, तो मैंने कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किया, डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है विच इज एक्स, करेक्ट। सो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। करेक्ट है। सो लेट्स से अगर मैं अब बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। अब मुझे रूट दी हुई है, हमने साइन 2x का रूट तो नहीं लर्न किया है, तो मैं इस रूट को अगर हटा पाऊँ तो दैट वुड बी ग्रेट। तो मैं जानता हूँ कि 1 माइनस साइन 2x को व्हाट यू कैन राइट ट्रिग्नोमेट्री में कॉस x, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ मैं। सी 1 के लिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए, तो ये टोटल मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। सो 1 माइनस साइन 2x क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। सी अगेन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि रूट मेरा निकल जाए, क्योंकि रूट के अंदर हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वी डोंट हैव साइन 2x पे 1/2 का फॉर्मूला, साइन 2x वी नो बट इट इज रूट, और एल्जेब्रिक नहीं है ये कि x टू द पावर 1/2 कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने ये फॉर्मूला है, सो हमारा आई होगा डेयर रूट और अंदर क्या आ गया cos x माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, व्हाट लेफ्ट cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है।
यहाँ पर भी कई कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रूट और स्क्वायर हट गया तो प्लस माइनस आएगा। नो, एरिया है ना, एरिया वी हैव टू फाइंड। हम इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, एरिया निकालने के लिए, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हमें लिमिटिंग वैल्यू दी होगी, मॉड दिया होगा, देन वी विल डिस्कस, दैट इज इन डिफरेंट इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव इसका लिखेंगे। अब हमें पता है सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो गया, और दोनों के सी और इसके सी मिलके एक सी आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस साइन 2x इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर है? बड़े बेसिक इंटीग्रेशन देख रहे हैं आप, इसको अच्छे से सीखिए। यहाँ पे 1 प्लस होता तो ये प्लस आ जाता, ठीक है, यहाँ 1 प्लस साइन 2x होता तो यहाँ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और फिर इंटीग्रेशन। यहाँ पे बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम में कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से वी हैव क्वेश्चन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो ये कॉसिक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बनेगा, जो फॉर्मूला में नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे सोच के करना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 1 तो है, तो 1 के लिए मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कैन बी राइट फॉर 1 वी कैन राइट दिस, ठीक है। अब मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर अपॉन दिस क्या रह गया, और डी एक्स को भी सेपरेट ले लेता हूँ, तो ये रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको सेपरेट किया तो दिस अपॉन दिस, सो व्हाट लेफ्ट डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, दिस केम सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस केम कॉसिक स्क्वायर एक्स। सी, अभी इन दोनों हमारे फॉर्मूला के टेबल में है। सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, पता करते नहीं किसका डेरिवेटिव है, tan x। सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। ये एनडीए का पहला क्वेश्चन है, एनडीए में ये सम आए हुए हैं डियर। ऑप्शन में हमारे पास tan x माइनस कॉट एक्स था, ठीक है, क्लियर। सो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, नाउ वी सेपरेट इट एंड देन वी मैच द आवर फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला याद किया है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सो tan x माइनस कॉट एक्स। ठीक है डियर, क्लियर दिख रही है, क्लियर समझ में आ रहा है सभी को। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos 3x माइनस 4 टू द पावर x tan 3x अपॉन 4 टू द पावर x cos 3x dx, ठीक है। केयरफुली देखेंगे इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं सेपरेट करूँ तो ये क्या आएगा, e टू द पावर x बाई 4 टू द पावर x, क्या से कैंसिल, dx भी इनके साथ ले लिया और सेपरेट इधर किया तो माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, tan 3x और cos ऊपर गया तो sec 3x dx। क्लियर यहाँ तक समझ में आई बात, सेपरेट हो गई। ये अपने पास क्या हो गया डियर, e बाई 4 पे x dx, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट e बाई 4, तो ये a टू द पावर x का फॉर्म ले लिया, क्योंकि e बाई 4 इज अ कांस्टेंट, a बन गया वो, e बाई 4 बिकम्स a टू द पावर x। अब यहाँ तो मुझे पता है sec x tan x इसका इंटीग्रेशन है, sec x का,
सेक 3x और x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, प्लस c, इनका भी c आएगा, c ऐड हो जाएगी। अब ये a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a टू द पावर x अपॉन log a, a टू द पावर x log a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log a माइनस sec 3x अपॉन 3 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो मैंने सेपरेट किया, ठीक है, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। बस यहाँ केयरफुल क्या रखना है, e by 4 इज योर a टू द पावर x फॉर्म, क्योंकि e टू द पावर x और a टू द पावर x अलग अलग नहीं होगा, u अपॉन v नहीं होता है। तो मैंने e by 4 को एक कांस्टेंट a टू द पावर x तैयार कर दिया, बिकॉज e भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। सो ये जो सम्स किए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन अभी भी केवल फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। आइए एक दो और सिचुएशन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। अब ये u इंटू वी नहीं है, u इंटू वी मीन्स टू डिफरेंट फंक्शन होते हैं। यहाँ पे दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन 7x साइन 3x। तो ऐसे 3-4 सिचुएशन हो सकता है, साइन x कॉस x, कॉस कॉस, साइन कॉस, ठीक है। तो ये साइन x साइन x। तो डियर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट था 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। दिस इज डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। इफ यू रिमेंबर दिस डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो अब ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, प्लस और माइनस में। तो टू डिफरेंट इंटीग्रेंड आ जाएंगे, तो वो इंटीग्रेट हो सकता है। तो इसके लिए अपने को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। सी इंटीग्रेशन में वेरिएबल से कभी भी आप बाहर और अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। केवल कांस्टेंट से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं वो सब्स्टिट्यूशन में फिर से मैं बताऊंगा। 2 साइन 7x इंटू साइन 3x dx। So this came 2 sin A sin B formula. So 1 by 2, what it will be, cos A minus B minus cos A plus B, ठीक है, into dx। अब इंटीग्रेट कर लें, सेपरेट करते, cos 4x dx minus cos 10x dx। So what will happen at the end, 1 by 2 cos 4x is sin 4x अपॉन 4, x का कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस sin 10x अपॉन 10 प्लस c, ठीक है डियर। सो sin 7x इंटू साइन 3x इस तरह से इंटीग्रेट होगा 2 sin A sin B के फॉर्मूला से, ठीक है। cos A माइनस B माइनस, तो 2 डिफरेंट इंटीग्रेशन आ गया। और आपने को पता है cos AX प्लस B, cos AX प्लस B का फॉर्म है, जो फॉर्मूला याद है अपने को, cos AX प्लस B इज sin AX प्लस B अपॉन A, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। सो यहाँ पे डियर तीनों चारों फॉर्म हो सकते हैं। लेट्स से sin 7x cos 3x डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sin A cos B लगा दोगे आप, डी फैक्टराइजेशन। या मान लो आप एक इंटीग्रल ये बनाया cos 3x इंटू cos 4x। सो व्हाट यू विल डू, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। यहाँ क्या लगा सकते हैं आप, 2 cos A cos B, डी फैक्टराइजेशन, करेक्ट, विच इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, सो दैट यू कैन स्प्लिट इन 2 इंटीग्रल्स। तो ये जो प्रोडक्ट है वो प्लस में स्प्लिट हो गया, या प्रीवियस सम में माइनस में स्प्लिट हुआ था, बिकॉज साइन ए 2 sin A sin B था। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इस तरह के प्रॉब्लम में यूज करते हैं। डू नॉट यूज u इंटू वी,
u इंटू वी मीन्स दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, करेक्ट। यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, सो यू कैनॉट यूज u इंटू वी रूल, यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, करेक्ट। 3 फंक्शन हुआ तो भी उसमें 2 को कलेक्ट करके 1 को छोड़ के फिर यूज कर सकते हैं आप, करेक्ट। 3 वाले पूछते नहीं एनडीए में, बट आप कर सकते हैं। सो आई बिलीव ये छोटे छोटे बेसिक जो क्वेश्चन थे आपको क्लियर समझ में आ चुकी है डियर। तो u इंटू वी वाले में सम को अंदर कैसे क्या करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया i इक्वल्स टू, ठीक है, लेट्स से आई हैव टेकन कुछ इस तरह का ले लें, 2 tan स्क्वायर 4x और 2 tan 4x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4x dx। सी अभी u अपॉन v दिख रहा है ये, ठीक है, u अपॉन v दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में है, ये किसका फॉर्मूला है, tan 8x का। tan 8x इज 2 tan 4x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4x, यही है ना फॉर्मूला, 2 tan 4x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4x, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। सो इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 8x dx, एंड tan x का इंटीग्रेशन क्या आपने लर्न किया है, log sec x, और ax प्लस b फॉर्म है तो डिवाइड बाई, यहां तक डिवाइड बाई 8 एंड प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। So integration of 2 tan 4x upon 1 minus tan square 4x is log secant x upon 8 plus c. So trigonometric formula, basic substitution, ये सब सारे रिक्वायरमेंट अपने को इंटीग्रेशन में लगेंगे। तो डेयर हमने देखा बड़े बेसिक स्टेप बाय स्मॉल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपने देखे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करूँगा जो एनडीए में पूछी जाती है और 12वीं के सिलेबस का पहला सेगमेंट है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक इंटीग्रेशन देखा जहाँ पे आप जो टेबल हमने बनाया है, चार्ट जो बनाया है, उस चार्ट को याद रखना है, करेक्ट। उस चार्ट में अभी इनवर्स वाले कुछ रिजल्ट है जो मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ, और देन वी विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम टू नो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक आप सारे फॉर्मूलाज को देखिए, बेसिक क्वेश्चन के इंटीग्रेशन देखिए, ठीक है। फॉर्मूलाज को हो सके 2 बार लिख लीजिए, बुक में भी अवेलेबल है, उसको भी पढ़ लीजिए, करेक्ट है।